इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुननिए सब बाण भाइयों ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसानवाणी और इस कार्यक्रम में जो है ना, सबसे पहले हम शुरुआत भी कर रहे हैं कि एक कृषि से संबंधित प्रश्न था। और हमारा जो आज का कृषि प्रश्न रहेगा वो सभी जो है ना किसान भाई या दूसरे श्रोता जो भी भाई सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम किसानवाणी, वो अपने जवाब जो है ना हमारे तक पहुंचावेंगे। और आज का जो हमारा कृषि प्रश्न है वो है कि भाई शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है। किसान भाई एक बार फिर सुना प्रश्न को, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है। इसका जवाब भाई आपने देना है 6:50 तक। और हमारा जो भाई फ़ोन नंबर है वो भी लिख लें, 94 660 21 336। फिर सुने, 94 660 21 336। इस फ़ोन नंबर के जरिए भाई आप हमारे तक जो है ना SMS के जरिए अपना जवाब भेज सको हो। और भाई अब जो है ना थोड़ा सा लेंगे अंतराल और उसके बाद शुरू करेंगे अपनी चर्चा। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development,
nearing its 100 years of freedom. We, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. किसान वाणी में हम जो चर्चा लेके आ रहे भाई, वो नहीं किसान के भी जो है ना, सरकार भी चाह रही है कि किसान बाड़ी में ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें, तो चलावा है और तो योजना और भाई कृषि खातर भाई राष्ट्रीय मिशन योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और भाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस तरह के कई ढाल की योजनाएं जो है भाई सरकार ने चला रखी हैं। तो क्यों ना आप देखा है, जाना है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, यो योजना में जो सिंचाई कर रहे हैं ना, उससे और इसकी ये है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इस योजना का उद्देश्य भी यही है या थीम भी यही ला लो कि भाई हर खेत को पानी। जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो खेती करा है, उसके लिए भाई जो उपकरण खरीदने हैं आपने पानी देने वाले, उनके ऊपर सरकार भाई सब्सिडी दे है और किसानों को उन दी जा है जो इन योजनाओं को लाभ उठावेंगे। और इसका लाभ उठा, एक तो भाई पानी की बचत होगी, दूसरा कम मेहनत लगेगी, साथ ही भाई आपका जो खर्चा है उसे कम जो है ना लगेगा वो भी, और इस डाल कई डाल के खर्चे हैं, दूसरी जो समस्या हैं भाई उनसे निजात पा सको हो। तो भाई किसानों को अपने खेत में सिंचाई करने में सुविधा होगी अगर भाई आप इस योजना का लाभ उठाना चाहोगे। एक योजना की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना का मतलब क्या है कि फसल का बीमा आपने करवाना है। पहले क्या करे करते भाई, कहीं डाल के नुकसान हो जाए करते, जिस तरह आग लाग जाए करते गेहूं की फसल में देखे करते, क्योंकि भाई एक तो गर्मी का मौसम हुआ था, ऊपर तक कहीं कह करते भाई स्पार्किंग हो जाए करते, खंभे पर बिजली आ गई या कोई और माड़ा मोटा किसी ने चलते चलते ना कोई पतंगा बीड़ी का फेंक दिया, तो इस डाल भाई कई तरह की समस्या में थे और किसान भाइयों का नुकसान हो जाए करे था, क्योंकि उनके खेत जल जाए करते थे, मेहनत खत्म हो जाती उनकी। तो इस करके भाई सरकार ये योजना चलाई है कि अगर भाई कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भाई इस का जो फसल का जो नुकसान हो रहा है उससे वो बच सके हैं। और बख्तरंद फसल बीमा योजना जो है ना करवा लो, तो किसानों को अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए खुदा ना खास्ता, तो उससे भाई बच सके हैं। और इसी तरह और जिस तरह के किसान क्रेडिट कार्ड, और ये को भाई जो उनकी पैसे से संबंधित योजना है, और सरकार का भी यही मकसद है कि भाई जो किसान भाई हैं उनको जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी सुविधा जो है उनको दी जाए। और ये को भाई कम समय के लिए लोन जो मिला है उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, और कम ब्याज दर पर मिला है। ये लोन जो है सुनिश्चित करा है कि भाई जो कृषि है, जिस तरह मछली पालन है, पशुपालन है, इस तरह कई तरह के जो है ना आप धंधे कर रहे हो, उसके लिए जो है ना किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और बिना किसी गड़बड़ी के उसको जो है ना पूरा कर सकेंगे। इसके लिए आपको पहले भाई किसान क्रेडिट जो कार्ड है वो बनवाना पड़ेगा, और तभी आप जो है ना भाई लोन खातर अप्लाई कर सको हो। और किसान क्रेडिट के लिए भाई अपना बैंक में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, ये जरूरी है भाई। एक और के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना का भी देखो किसान भाई पूरा लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि कई बार देखे करते जाए जब सीजन आया था खाद बीज लेने का पैसे नहीं हो रहे थे, तो सरकार ने भाई ये योजना चला दी कि जो भी किसान भाई हैं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की तरफ से भाई जो स्कीम चला रखी है, इसके तहत भारत में भाई जो 2 हेक्टेयर तक कम
जोत वाले जो किसान हैं भाई 12 करोड़ छोटे छोटे और सीमांत किसान देखे, जिनकी भाई न्यूनतम इनकम सहायता के तौर पर भाई हर साल 6 सरकार मदद देवा है। और यह जो है ना 2-2 हजार रुपये करके 3 बार देवा है। तो अभी देखा भाई जो किसान भाई जिन जो इस योजना से जुड़ रहे हैं उनके खाते में पैसे भी आवा है। इसी तरीके भाई कुसुम योजना है भाई, नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने देश में सौर पंप हैं, जिस तरह ये सारे के सारे ग्रिड तक जोड़कर सौर और दूसरे जो नवीकरण ऊर्जा संयंत्र हैं इनकी स्थापना खातर किसानों के लिए भी जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और भाई उत्थान महाअभियान की योजना शुरू कर रखी है। तो भाई इस डाल जो है कई तरह की योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। जो किसान भाई देखो कुछ तो फायदा भी उठा रहे हैं, जो भी वंचित हैं वो भी आप इन योजनाओं का लाभ उठा सके हैं और भाई अपना खेती बाड़ी में जो है ना भरपूर मुनाफा कमा सके हैं। तो ये तो जिक्र करें हमने कि जो किसानों के लिए भाई राष्ट्रीय योजनाएं क्या थी। और इन जो भाइयों को मौसम की जानकारी दे दें, क्योंकि जो मौसम है ना रोज परिवर्तनशील रहता रहा है। और उस योजना क्या है कि जो मौसम की जानकारी में कभी आप देखते भी रहो, कभी गर्मी हो जाए ज़्यादा, थोड़ी देर पीछे देखा बादल हो जाए और फिर बारिश हो जाए, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाए। तो भाई मौसम क्या कह रहा है इसकी जानकारी भी ले लें। किसान मौसम पूर्वानुमान विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान क्षेत्र किसान जिले 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा, तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा और 51% रही प्रति घंटा और बारिश की मात्रा 4.5। अब हम बात करते हैं उनके पूर्वानुमान की। किसान मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगा दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने, अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों 4 और 5 अगस्त को जिले में अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है और 6 और 7 अगस्त को कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों जैसे कि वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए आपसे निवेदन है अपने फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। साथ ही किसान भाई आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अपने पशु का बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए आप नजदीक के पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें। धन्यवाद। तो ये तो ले भाई है ना मौसम की जानकारी। और भाई जो कल हमारा कार्यक्रम किसान वाणी रहेगा उसमें हम क्या चर्चा लेकर आएंगे इसका भी भाई जिक्र करना देखो जरूरी है, क्योंकि किसान भाई पहले तैयार हो जाए सुनने खातिर या भाई अपना जो है ना किस समस्या से संबंधित है। तो कल का किसान वाणी रहेगा भाई वो रहेगा हम चर्चा लेकर आएंगे पहला तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे रासायनिक कीटनाशकों का वातावरण पर क्या कुप्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ भाई मोटे अनाज के बारे में और भाई कृषि से संबंधित जो प्रश्न पूछा है इसके भी आपको जो है ना पूछेंगे, प्रश्न भी पूछ दे रहे हैं। तो ये जानकारी हम कल के कार्यक्रम में लेकर आएंगे और ईब जो है ना भाइयों का करावेंगे मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये रागनी भाई। भाई ले कह दे दे और कर कह खा ले देखे इससे कौन जबरोस एक नुगरा मानस आंख बदल जा समझनिए की मरोस ले कह दे दे रे कर खा ले इससे कौन जबरोस नुगरा मानस आंख बदल जा समझनिए की मरोस। धरती हल्ले
नुकरा चल फिर धरती हल हर इंसान डरे उसते सप्तऋषि और दरु भगत का दीन और मान डरे उसते और महाभारत रामायण और गीता वेद कुरान डरे उसते और के ज्यादा जिक्र करूं फिर खुद भगवान डरे उसते और के ज्यादा जिक्र करूं फिर खुद भगवान डरे उसते खानदान के बालक न तो खानदान के रे बालक न तो जात जान का डर हो स नुकरा मानस आंख बदल जा समझनिए की मरहोस भाई ले कह दे तेरा करके खा ले रिश्ते कौन जबर होस एक नुकरा मानस आंख बदल जा समझनिए की मरहोस ईश्वर ने दो जात बना दी एक टोटा और एक सहुकारा जिस मानस पर टोटा आ जाए फिर भाई दे दे ददकारा जिसके धोरा पैसे हो जाए सब न लग गए प्यारा एक बेल का कई फल लग गए कोई मीठा कोई खारा भीड़ पड़ी मैं रे देखा जा स किसते कौन बिसर हो स नुकरा मान से आंख बदल जा समझनिए की रे मरोस देख दे दे रे करके खा ले रिश्ते कौन जबर हो स नुकरा मान से आंख बदल जा समझनिए की रे मरोस कंडे कर्म बना दिया न्यारा न्यारा एक की बन जाए किल्मा लिखने की एक का घल जा डारा हाँ एक की बन जाए कलम लिखने की एक का घल जा डारा एक मट्टी के हाँ एक मट्टी के फिर दो बर्तन देखे एक नमूना तारा एक में गंदा पानी घल जा एक बन जाए घी का बारा एक में गंदा पानी घल जा एक बन जाए घी का बारा टोटे के मारे बालक बिक जाए भाई टोटे के मारे बालक बिक जाए और बिकना घर हो स नुकरा मान से आंख बदल जा समझनिए की रे मर हो स भाई ले का दे दे रे करके खा ले रिश्ते कौन जबर हो स नुकरा मान से आंख बदल जा समझनिए की रे मर हो स मानस दे मैं जन्म धारिक मानस दे मैं जन्म धारिक करके खाना चाहिए गिरता गिरता फिर मानस गिर जा कीते ठिकाना चाहिए जिस मानस का काम ओट ले फर्ज निभाना चाहिए लक्ष्मी चंद जैसा गाया करता ऐसा सुर में गाना चाहिए लक्ष्मी चंद जैसा गाया करता वैसा सुर में गाना चाहिए गाम बचाला तकता गला देखे गाम बचाला तकता गला और पहली चोट जी कर होश है नुकरा मान से आंख बदल जा समझनिए की रह मरहोश ले के दे दे रह करके खा ले रिश्ते कौन जबर होश नुकरा मान से आंख बदल जा समझ
और भाइयों ये तो सुनिए आपने रागनी, और गायक कलाकार थे भाई रूपचंद्रा। और अब हम जो है ना अगला जो बातचीत कर रहे हैं आपके साथ नई फसल नई उमंग में, वो कर रहे हैं भाई औषधीय फसल ग्वार पाठा, जिस नाम देसी भाषा में कहते हैं ग्वार पंठा। तो भाई जो ग्वार पंठा है ना, कई जगह तो इसने घृत कुमारी भी कहते हैं, और कई भाई जो है ना जो घृत कुमारी, घी कुंवार, ग्वार पंठा सब इसी के नाम है। और क्योंकि भाई जो ये नाम है सारे हम गामा में इसने ले हुए हैं देसी लोग सारे, तो इसके बड़े फायदे हैं। क्योंकि एक तो इसमें जो रासायनिक तत्व हैं वो भी बहुत बढ़िया मिला है, और भाई इसके जो गुण है ना, जो इसका फायदे हैं ग्वार पंठे के, वो भी बहुत है। अगर भाई इसमें जिस तरह के अगर आप इसना खाओगे, इस तरह अगर आप इसना खाओगे तो कई डाल के जो है ना बीमारियां यूँ काट भी दे है। और इसमें जो रासायनिक तत्व की बात कर रहे थे, इसमें मिला एक तो ल्यूपिओल एसिड है ये, और भाई एक फिनोल या गंधक जो तत्व है वो भी इसी में मिला है। जो ते बैक्टीरिया ते मोल्ड या वायरस जो संक्रमण करते हैं उनसे बचा कर रखा है। और इसी तरह के उपयोग की बात करें तो एक तो जड़े हुए घाव हो जाए उसके ऊपर ला दो, ठीक हो जाएगा। चोट पे, बाई बादी में, पुराने बुखार में, अपचन में, अल्सर में, जो पाचन तंत्र है, या दूसरे और भाई आंतों के रोग हैं, पेट की बीमारियां हैं, या भाई जो कोलेस्ट्रोल है उसको कम करके जो हमारे हृदय रोगी भाई हैं उनको बड़ा फायदा दे है यो। क्योंकि भाई इमोडिन और लैक्टिन तत्व जिस तरह है इसके अंदर, वो कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उसको भी ठीक करने में यो काम आवा है। और इसका जो जेल है यानी कि जो इसका गुद्दा भीतर है जो फेसा, वो भाई जो सुंदरता बढ़ाने वाले जो साधन है, जिस तरह के शैम्पू है, लोशन है, चेहरे की क्रीम है, वो उसमें काम आवा। और ये इसकी जातियां भी कई प्रकार की हुआ भाई, जिस तरह एक तो अलोएवीरा है, या तो आम जाति है भाई इसकी प्रजाति, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र में यूँ ही बोया जा है, पाया भी जा है। दूसरा अलोए इंडिका है, यूँ भाई खास करके चेन्नई तक लेकर रामेश्वरम तक यूँ मिल जा है। और छोटा ग्वार पाठा भी क्या है इसना, यह आकार में भाई 6 से लेकर 8 इंच या भाई 1 फुट लंबा, और किनारे जो है ना इसके वो चुंचा से वाले नुकीले हुआ है। और यो भाई कई तरह बुखार में बड़ा उत्तम रहा है। इसी जाफराबादी ग्वार पाठा है, यो सौराष्ट्र का समुद्र तट के जो एरिया हमारे उनमें मिला है। इसके पत्ते जो है ना तलवार के आकार के सफ़ेद धब्बे अड़े हुए हैं। और भाई अलोए भी एक इसकी जाति अफ्रीकन प्रजाति है, यो लगभग के 10 फुट 9-10 फुट के करीब ऊंचा हो जा, मोटी पत्तियां वाला हो आयु। और भाई यो जो पौधा है ग्वार पंठे का, इसका तर जो जलवायु है, और अपने देश में तो खासकर जो सारे अक्षेत्र समय जो उग सका है, क्योंकि पानी की जरूरत इतना कम हुआ है। और यो खास करके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इस तरह के जो खुश्क इलाके हैं उनमें ज़्यादा हो सका है। यो अगर इसी किस्म की बात करें तो इसकी जो मिट्टी है उसमें किस तरह की मिट्टी में होगा यू, इसके लिए भाई जो मोटी रेतली जो दोमट मिट्टी है इसके लिए बहुत बढ़िया रहा है। और पानी की निकासी बढ़िया हो, उचित प्रबंध हो इसका, तो बोर भी बहुत बढ़िया होगा यो। और ज़मीन की तैयारी किस तरह करा, इसकी भूमि की तैयारी लाने खातर भाई इसके लिए भाई 20 से 30 सेंटीमीटर तक गहराई वाली 1-2 जुताई बहुत बढ़िया है। ज़मीन को छोटे छोटे समतल प्लाट में उसको जो है ना कर लें। और खाद की बात करें तो 5-6 टन गोबर की जो खाद है भाई सड़ी वो प्रति एकड़ ज़मीन पर तैयार करते टाइम जो है ना देनी चाहिए। और इसका जो बिजाई का समय भाई खास करके जिस तरह की जो महीना चल रहा है जुलाई का, इसके लिए तो बहुत बढ़िया भाई। ये तो आजकल लग सका है, अगले महीना भी लग सका है, अगस्त में, जुलाई अगस्त में तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी चलती रहा है और इसकी जड़ भी जल्दी पकड़ लेगा। और बिजाई का तरीका न्यू है भाई, इसका 3 से 4 महीने के जो शक्कर हैं या पौधे हैं 4-5 पत्ते वाले, वो लगभग 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर लंबाई के 60 बाई 60 सेंटीमीटर के जो दूरी पर आपने लगाने हैं। और शक्कर के चारों तरफ भाई ज़मीन को अच्छी तरह से दबा देना है। लगभग 5 से लेकर या 5,500 जो शक्कर हैं 1 एकड़ ज़मीन के लिए बढ़िया रहेंगे। और गमले में भाई इसको उगा सका है ग्वार पाठा, अब देख भी रहे हैं कोठियों में भाई, घरों में इसको लगा लेते हैं, गमलों में चलता रहा है। और पानी की बात करें तो भाई जब इसने लावेंगे एकदम से आपने तुरंत जो है ना भाई इसके बाद पानी देना, लाने के बाद 2-3 सिंचाई थोड़ी कर दो। और अच्छी तरह से भाई जब यू जड़ पकड़ ले तो 4 से 6 सिंचाई हर वर्ष इसको देनी पड़ेंगी।
निराई गुड़ाई की बात यह है कि भाई पहली गुड़ाई तो जो है ना 1 महीने बाद करें, 2-3 गुड़ाइयाँ भाई प्रति साल आपको करनी पड़ेंगी। तो भाई इस डाल जो है ना आपने ग्वार पाठे की जो काश्त है वो कर सको और भाई इसका फायदा भी उठा सको हो। और भाई रही बात ईब थोड़ा है और जिक्र कर लें प्राकृतिक खेती का, नहीं भी कर लें जिक्र। और आज हम जिक्र करेंगे भाई नीमास्त्र के बारे में। यो भी भाई एक रस चूसक या फड़ा छेदन जो है उसको नियंत्रण कर सका है, 6 महीने तक इसको स्टोर करके रख सके हैं। बनाने की विधि तो यही है भाई, एक बर्तन लेना अपने 100 लीटर पानी से भरना है, 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाना है उसमें, 5 किलो देसी गाय का गोबर मिलाना है, कुटी 5 किलो नीम की पत्तियाँ, कुटी निम्बोड़ी इसमें मिलानी है। इस जो मिश्रण हो जाएगा यू 24 घंटे खातर भाई अपना यू किड़वन खातर यानी कि सफाई के लिए या बैठ जाएगा, जब मैल उसके नीचे मैली हो जाएगी जो वो नीचे बैठ जाएगी, साफ हो जाएगा ऊपर से। और भाई इस तरह देखेंगे तो कई बार अगर मान लीजिए नहीं गुड़ाया तो भाई 2-3 बार डंडे तक इसको हिला दें। तो इस प्रकार भाई जो है ना यू स्प्रे 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल के जितने भी रस चूसक जो वाले जो कीट हैं जिस तरह के मिली बग है इसका प्रकोप ज़्यादा हो जड़ा ओठा छिड़क सको हो और भाई अपनी खेत को उसको बचा सको हो। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर बता दें अपना एक बार, वो है भाई 1551 भाई। जब भी कोई किसान भाई को समस्या हो जिस भी समय तो भाई आप इस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सको खेती बाड़ी से संबंधित। और भाई हमने प्रश्न पूछा था उसका जवाब किसी ने दिया नहीं भाई, देखो जवाब दिया करो। और आज का हमारा जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब है भाई शुष्क क्षेत्र वाले में जो जमीन में क्या पैदा होगा सबसे ज़्यादा वो रहा है भाई मूंगफली, रेतली जमीन में पैदा हुआ है या। तो भाई इस डाल जो है ना आपने प्राकृतिक खेती की चर्चा सुनाई आपने। और एक बात और ध्यान रखे करो, जब भी आपको कोई समस्या हो भाई 1551 पर कॉल करके जिस भी समय लगे आपको 9 से 5 बजे तक तो आप कर ही सको हो, तो समस्या का समाधान कर सके हो। तो भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भाई इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।